Hello, my lovely students. This is me, your social science teacher Kanchan ma'am, and I welcome you all to this session. Students, today we are going to learn about the cultural roots of our country, India. Yes, before we begin, let me tell you, whenever we talk about the cultural roots of our country, it is broadly divided into Vedas, Buddhism, Jainism, and yes, of course, the tribal societies who have been living here in our country since so long past times. यस तो ये चैप्टर भी आप देखोगे इन 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है. यस वेदास के अंदर ही लाइक एज द सब टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स एज वेल. यस तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडियन कल्चर है दैट यू कैन सी इट इज लाइक मोर देन लाइक 1000 years ओल्ड. बहुत हजारों साल पुराना है, ये बहुत साल पुराना है. यस और कहा कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं या कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं विच आर देयर इन आवर कंट्री एंड यस इन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. बेसिकली कल्चर क्या है? अगर हम कल्चर को स्पेशली डिफाइन करें तो व्हाट इज दिस कल्चर? कल्चर इज बेसिकली समथिंग which is influencing our daily lives, right? It is the various aspects of our daily lives, right? For example, art is there, literature is there, science, medicine is there, our government system is there, right? तो basically हमारा जो living style है, हम कैसे बात कर रहे हैं, what all languages are we using while speaking or while communicating with each other, right? So that is all is a part of culture. Yes, so culture of course considering it consists of ऑल दीज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स. और ये जो हमारे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं दे गॉट इवॉल्व विथ टाइम. यस ऐसा नहीं था कि हमें एकदम से ही 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स मिल गए या फिर हमें एकदम से ही 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर दिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस all this happened with a passage of time. Yes, so these are the various aspects of Indian culture that has evolved with time. Yes, and let me tell you that these are still evolving. Yes, they have still been in the process of evolution only. Yes, अब देखते हैं next form क्या आता है. Yes, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे इंडियन कल्चर का दैट इज स्कूल्स ऑफ थॉट. यस स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है? सो सी सिंपली it simply means schools of thought. It's a group of thinkers, right? It's a group of thinkers firstly and spiritual seekers who shared ideas about life, the world and human nature. Fine. तो सिंपल सा अगर हम इसको पुट करें तो वी विल सी दैट स्कूल्स ऑफ थॉट इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली अ पीपल. कौन से पीपल? जो कि थिंकर्स हैं एंड स्पिरिचुअल सीकर्स हैं. Now, what is the meaning of this thinkers and spiritual seekers? Thinkers are basically जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो कि देखते हैं कि अभी हमारी कंट्री में और किस चीज की जरूरत है या अभी हमारी सोसाइटी में और क्या जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल इन योर सोसाइटी ऑल्सो you may be having a group of people who are taking care of your society, whether water is properly available or not, whether you will see that is there proper celebration is going or not for any particular occasion or for any particular festival, right? In your schools also you will find that for before going into your annual functions there is proper planning is there, right? proper planning होती है, उसके बाद हम उसको execute करते हैं. तो वो जो planners हैं, वो जो कि organizers हैं, they all become the part of thinkers only. तो ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी भी होती है वो भी इन्हीं थिंकर्स की वजह से ग्रो करती है, उनके आइडियाज की वजह से ग्रो करती है. यस द सेकेंड इज योर स्पिरिचुअल सीकर्स. इस स्पिरिचुअल में यू विल सी अ वर्ड दैट इज टू से स्पिरिट. स्पिरिट मतलब एक एनर्जी विच इज देयर इनसाइड अस, ठीक है, जो कि हमारे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, राइट? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, अभी तो कुंभ भी चल रहा है, महाकुंभ भी चल रहा है, राइट? तो देयर सो मेनी अघोरी बाबाज आर देयर, राइट? देयर आर सो मेनी मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स आर देयर, राइट? तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? दे ऑल आर ट्राइंग टू go inside their spirit world, right? They are trying to go inside their spirit world and they are trying to understand the meaning of life. Yes, तो ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स और थिंकर्स से मिलकर बनते हैं आपके स्कूल्स ऑफ थॉट.
यस, एंड ये क्या शेयर करते हैं? दे शेयर अमंग्स देमसेल्व्स अबाउट लाइफ, कि जिंदगी क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा पेरेंट्स या बड़े लोग घर पे बैठे ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जिंदगी क्या है, हमने तो हमारे दिन में हमारे जमाने में ये सारी चीजें की थी। जैसे हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बड़े भाई, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। सो देर आर आइडियाज बेसिकली, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज ऑफ दीज थिंकर्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स। ठीक है, जिंदगी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दुनिया कैसे है, कहाँ से आई, कैसे बनी, एंड ऑल। ठीक है, ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, मीन्स व्हाट इन व्हाट वे अ ह्यूमन बीइंग शुड लिविंग हिज लाइफ। So what is the best way to live a life without having any misery, or without feeling, or without surviving any kind of suffering or anything of that sort, right? ठीक है, so these are the schools of thought basically. ठीक है, तो उसमें कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं who are thinkers and spiritual seekers, and they share the ideas about life, human life, that is to say human nature, and the world at large, right? So this is about the schools of thought, and let me tell you there are hundreds of schools of thought. अब हम इसमें सारे hundreds of schools of thought तो नहीं पढ़ेंगे, but yes, we will looking into a few of them, right? So yes, इसी के साथ let me tell you, जो इंडियन कल्चर, अभी तक हमने क्या देखा कि जो इंडियन कल्चर है इसके बहुत सारे रूट्स हैं, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आर्ट, आर्ट के अंदर पेंटिंग्स हो गए, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, देन वी हैव द गवर्नेंस सिस्टम इज देयर, राइट? देन वी आर हैविंग देयर इज अनदर वे लाइक हाउ द पीपल दे आर लिविंग बेसिकली, राइट? लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, फेस्टिवल्स इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो एक आर्ट का जो एक कल्चर है, कल्चर जो है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। Fine. Now these aspects, they have the roots where like they are belonging to various schools of thought. ठीक है, this is the second thing we learn. Next क्या है, जो इंडियन कल्चर है, that you will see कि इसकी जो रूट्स हैं दे आर इवन देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम पर भी है, जिसमें आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन भी आ जाएगी, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? Basically like one of the most, like one of the oldest civilizations that existed in the world, and it was existing near this Indus river, right? So that is why the name came up as Indus Valley civilization. So these are some of the things that had shaped Indian culture of our country. ठीक है, कल्चर के कितने एस्पेक्ट्स हैं? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ ही जो कल्चर है वो कहाँ से शेप हुआ, कैसे आया? बिकॉज ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट, राइट? एंड थर्ड पार्ट ये भी देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द वे पीपल वर लिविंग, सो दैट ऑल्सो मेड वॉट एवर द इंडियन कल्चर दैट वी हैव टूडे। ओके, सो यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज योर वेदास, राइट? जो वेदास हैं उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे इंडियन कल्चर को, हिंदुइज्म को बहुत कॉन्क्रीट शेप दिया, राइट? एंड वॉट एवर शेप यू आर लुकिंग एट, और वॉट एवर शेप दैट यू फाइंड ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, किस फॉर्म में हिंदुइज्म की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या रिचुअल्स हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स हम इंजॉय करते हैं, द वे ऑफ लिविंग, राइट? सो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है इन सब की रूट्स कहाँ पे है? वेदास में है। कहाँ पे? वेदास में। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट दिस ओनली, दैट व्हाट आर दीज वेदास आफ्टर ऑल। सेकेंडली वी लर्न अबाउट कि उस टाइम पर, ओल्ड टाइम्स में वैदिक सोसाइटी थी कैसी, ठीक है? जैसे अगर हम सोसाइटी की बात करें, एट प्रेजेंट इन वॉट एवर सोसाइटी यू आर लिविंग, यू नो what are the common points there? Every child he goes to school, right? He studies, right? Another part is what? That he takes all the Olympiad exams, okay? He tries to be good in all the extracurricular activities also, right? So that is kind of like children's society that we have at present, especially students part, right? So this is how the students of our country, they basically spend their childhood in such a manner. जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, हमारे राम जी के टाइम पर, राइट? क्या होता था? the children they used to go to गुरुकुल्स, राइट? इवन महाभारत के टाइम पर भी क्या होता था, जो राजकुमार है उनको गुरुकुल्स भेज दिया जाता था,
There was a system, there was a hierarchy, right, that which was to be followed to like to carry on any kind of occupation, right? So वो उस time की society का system था. At present it is different, right? So here we will learn about कि जब वेदास आए, that moment, that time period, उस time पर वैदिक society कैसी थी, how was it like, right? Thirdly we will see वैदिक schools of thought. तो वेदास के टाइम पर, उस टाइम पर जो सोसाइटी थी, वहां से क्या क्या थॉट्स, ओपिनियंस, राइट, वहां से हमारे पास क्या क्या थॉट्स, थॉट्स के साथ साथ बिलीव्स, बिलीव्स, ओपिनियंस, राइट, प्रिंसिपल्स, द वे ऑफ लिविंग, राइट, ये सारी चीजें क्या क्या हमारे हिंदू कल्चर को मिली, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. नाउ लेट्स जस्ट आंसर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर वेदास, राइट? अब आप अगर वेदास को देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ संस्कृत वर्ड एक्चुअली. संस्कृत वर्ड क्या है? विद या विद्या, राइट, जिसका मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग इज नॉलेज. So basically Vedas, we can say that that time period was of knowledge, right? और हमारे पास कितने वेद हैं? We are having 4 Vedas. सबसे पुराना, the oldest one is your Rig Veda, ठीक है? And in this what is mentioned? That is to say hymns and praises of God is given, right? Hymns and praises of God is mentioned in the first one, that is Rig Veda. Then we are having Yajur Veda, right? This is what about, it talks about the rituals which we can perform to impress or to basically worship these deities or these gods, right? So this is about your Yajurveda. Let's talk about this next one, that is Samveda. Samveda, it contains melodies for chants, that is to say all your mantras, right, any other kind of chanting mantra basically, so they all are the part of Samveda. Then we are having last is Atharva Veda. So this is like the latest one, you can say, in the Vedic history. Fine. It deals with everyday life and healing. Healing, that is to say related to medicines and all. Right. So this is about Atharva Veda. So these are 4 Vedas with us. Rig Veda, the oldest one, and it contains the praises that we praises related to various gods. Next is what, that is to say your Yajurveda, that is related to rituals which can be done to worship different deities or different gods. Then we have Samveda. It contains various chants or mantras basically, right? So it consists of that. And lastly we have Atharva Veda, which tells us that in what way one should live their life, right? And yes, also it talks about the various types of healing processes and also about the various medicines and all, right? So this is about the like kind of introduction we can say for Vedas it is, right? Now let's have a look that in what way these Vedas were. So let me tell you, all Vedas they were like poetic lines, you can say. They were like hymns, ठीक है, जैसे दोहा होता है, ठीक है? So they are in that form, right? Other part is what you will see, that these hymns they are designed, or these are composed in poetic and song form basically, right? Other part is what you will see, that these are composed in the language called Sanskrit basically, right? And they are in oral forms only, right? They are in oral forms. So basically they are recited by rishis and rishikas. Rishi is like male saints, so that is to say sages, and your female sayers, right? So this is about like how Vedas were composed. So they were composed in the form of hymns, like in a poetic style, like in a song form, right? Then other part is what, that who used to make use of these Vedas, that is to say they were recited by whom? So these Vedas, they were recited by rishis and rishikas. Okay, now see, when we were looking into the 4 different types of Vedas, we talked about what? We mostly talked about worshipping God, right? In the Rig Veda, the praises is given for different deities or various gods. Next is what? The different rituals are given to be performed to worship
various gods. Third is what? Mantras is mentioned. And in the fourth one, everyday life practice is mentioned for a human being. Fine. So basically, these Vedas, they are dedicated to some gods, right? So that gives a like broader picture of the Vedas. Okay. And yes, mostly what? Like Indra is there. He is like God. Indra is there, like he is the king of gods. Then we have Agni is there, right? आप देखोगे अग्नि देवता जिनको हम बोलते हैं. सरस्वती, that is goddess of wisdom, is there. Fine. So this is like mostly we find the Vedas, hymns and all, they are dedicated to these important gods, right? Next we are having what, that as I told you that they are basically orally written. That means they are basically in oral form. Fine. For so many years, right? Like for 100 to 200 generations, they were passed on. They were passed on from one generation to another in recitation form only, right? By reciting only, right? And these rishis and these rishikas, they used to recite to the children, right? And that is how the transition, or we can say the conveyance happened of these various Vedas to at the later generations also. Fine. Until what? Like 100 to 200 generations. Can you imagine? Yes. And even let me tell you here, in 2008, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, it has recognized Vedic chantings, the mantras and all, right? Vedic chanting, the hymns, mantras and everything, as a masterpiece of oral heritage, right? Masterpiece of oral heritage, right? So yes, even what we see that these Vedic hymns, they were originated from where? So it is found that they are originated from the place called Sapt Sindhua. Sapt Sindhva, can you recall it? Yes, the Sapt Sindhva, जहाँ पर आपकी there are like seven regions are there, right? So Sapt Sindhva, like a region which is getting drained by this river Sindhu. Fine. And it is proposed that when they were composed, actually, so when they were composed, so they were composed between 50th and second millennium BC. That is to say, आज से आप देखोगे तो 5000 से 2000 साल पहले, ठीक है, आज से 5 से 2000 साल पहले they were composed. So this is like the proposed dates, that yes, in between these, that they were composed. Fine. And yes, they were passed orally from one generation to another, and this continued for like 100 to 200 generations. Yes. तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखा कि वेदास में क्या क्या पॉइंट्स आ गए. वी आर हैविंग व्हाट, फर्स्टली वेदास क्या है, तो इट इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नॉलेज. देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ठीक है. कब कंपोज हुए? तो इट इज प्रपोज दैट दे आर कंपोज्ड बिटवीन 5th एंड 2nd मिलेनियम बीसी. किन्होंने इनको कंपोज किया, राइट? और बेसिकली हम देखते हैं, सो कंपोज किसने किया, दैट वी कैन नॉट से इन एग्जैक्ट फॉर्म्स, बट यस, दे वर रिसाइटेड बाय ऋषिकास एंड ऋषिस, right? And they were orally transmitted from one generation to another, and this continued for 100 to 200 generations altogether. Fine. कहाँ पे originate हुए? तो at the place called Sapt Sindhua, right? So this is all about, we know that it is all about your Vedas, right? Vedic hymns. Okay. इसी के साथ now let's understand that what are the Vedic beliefs are there. तो देखो, सबसे बहुत important belief जो है वेदास का, वो है दैट गॉड इज वन, राइट? देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, राइट? एंड वी फाइंड such kind of chanting, such kind of mantras from the various Vedic beliefs. Like for example, we have Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. That is to say, there is existent is one, but sages call it by many names. So that is to say, there is only one God. We may call it with different names. So yes, it simply means that there is only one God, but we may call it with different names. Next is what? Rig Veda also teaches unity among people, right? How? Come together, speak together, united be your purpose, united your heart. So Rig Veda में
सिर्फ यही नहीं बोला गया है, दैट इज टू से नॉट ओनली इन ऋग्वेदा बट यस अदर वेदास आल्सो, दैट इज टू से देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, वी मे कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स, राइट। इवन ऋग्वेदा में ये भी कहा जाता है, दैट इज व्हाट, कि हम सबको साथ होना चाहिए, राइट। कम टुगेदर, साथ में आओ सब, स्पीक टुगेदर, यूनाइटेड बी योर पर्पस, हम सब एक रहे, यूनिटी हमारा पर्पस होना चाहिए। यूनाइटेड योर हार्ट, इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ डुअलिटी इन योर हार्ट, दैट इज टू से भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग्स होना कि अरे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये सच है, ये झूठ है, नो, देयर शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट। सो यस, ट्रुथ जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। रितम जिसको हम बोल रहे हैं, राइट, रितम जिसको हम बोल रहे हैं वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। आज भी हम क्या फॉलो करते हैं, है ना, पेरेंट्स टीचर्स आपको सिखाते होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड नेवर लाई, राइट। सो सी आज की भी जो ये प्रैक्टिसेस है कहाँ से आ रही है, यू कैन सी द रूट्स ओवर हियर। सो यस, राइट। सो देखो वैदिक बिलीव्स क्या है, फर्स्ट में हमने क्या देखा, दैट गॉड इज वन एंड देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, राइट। एंड यस, नेक्स्ट इज व्हाट, दैट वी ऑल आर यूनाइटेड एंड देयर शुड बी ट्रुथ, राइट, सच होना चाहिए, फाइन। सो देयर शुड बी ट्रुथ एंड ट्रुथ इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, ट्रुथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइन। सो दीज आर द वेरियस बिलीव्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, ठीक है। अब जो वैदिक सोसाइटी थी वो थी कैसी आखिरकार, ठीक है। तो अभी तक हमने वेदास के बारे में जाना, फिर ये देखा कि उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ओके। नाउ वी आर लुकिंग इनटू वैदिक सोसाइटी। तो जो वैदिक सोसाइटी थी इट वाज लाइक जनाज, जनाज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, ग्रुप ऑफ पीपल, और जिनको कि हम क्लैंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लैंस भी, या कम्युनिटीज बेसिकली। सो ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है। ऋग्वेदा में कुछ कम्युनिटीज या कुछ जनाज या कुछ क्लैंस के नाम दे रखे हैं, जैसे भारतास, कुरुस, पुरुष, यदुस एंड तुर्वशास। So these are some of the names, ठीक है। 30 basically mentioned है, which are the janas, and these are the part of like Rigveda time, right? So that they are the part of this region, ठीक है। Yes, then we are having what, government system उस time पर कैसा था, very simple, king is there and there is sabha या समिति, that's it, मतलब group of people are there, that's it, and there is king। बहुत सिंपल सी सोसाइटी थी, इट्स नॉट लाइक दैट अ लॉन्ग हायरार्की इज देयर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, नो, वेरी सिंपल वन। यस, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे, पीपल दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, दे यूज्ड टू डू सो मच ऑफ वर्क, एग्रीकल्चर, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट, राइट। सो ऑल दीज वर्क्स दे यूज्ड टू डू, राइट। एग्रीकल्चरलिस्ट क्रॉप्स ग्रो करना, वीवर कपड़े बनाना बेसिकली, पॉटर घड़े बनाना, मटके बनाना, बिल्डर घर वगैरह बनाना, कारपेंटर फर्नीचर बनाना, हीलर, हीलर इज हु, हीलर इज अ पर्सन हु हील्स एनी सफरिंग और एनी डिजीज दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, मे बी फिजिकली और मेंटली। आज के टाइम की में बोले तो डॉक्टर, ठीक है। डांसर नर्तक, ओके, बार्बर कटिंग हेयर, देन वी आर हैविंग प्रीस्ट आपके पंडित जी, okay। So these are the various people and this was how the society was there in the during the Vedas time, okay। next we are having कि वैदिक schools of thought क्या है भाई, अब ठीक है। तो जो ये स्कूल ऑफ थॉट था, अब देखो स्कूल्स ऑफ थॉट का नाम आते ही यू जस्ट हैव अ पिक्चर कि देयर विल बी ग्रुप ऑफ पीपल who will be consisted of thinkers and spiritual seekers, ठीक है। और उनके कुछ आइडियाज होंगे, ओपिनियंस होंगे रिलेटेड टू लाइफ, ह्यूमन वर्ल्ड, राइट, ह्यूमन नेचर बेसिकली एंड द वर्ल्ड, राइट। सो स्कूल्स ऑफ थॉट, तो वेदा के टाइम पे, मतलब वेदास के टाइम पर, मतलब आज से 5000 2000 साल पहले का जो टाइम था, उस टाइम पर लोग क्या क्या बिलीव करते थे, ठीक है। तो दोज ग्रुप ऑफ पीपल, दोज थिंकर्स बेसिकली, सो व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव एक्चुअली, राइट, उनका क्या पर्पस था, व्हाट वाज देयर अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट, ओके। सो वो लोग दे यूज्ड टू परफॉर्म रिचुअल्स, और एक बहुत फेमस रिचुअल होता था दैट इज यज्ञ, यज्ञ करना। तो देखो आज भी हम यज्ञ करते हैं ना, देखो आई कहाँ से ये प्रैक्टिस, उस टाइम पर आई थी प्रैक्टिस यज्ञ की। इवन रामायण में भी हमने देखा था अश्वमेध यज्ञ किया गया,
राइट। हमने इन योर चैप्टर इंडिया दैट इज भारत, उसमें भी अश्वमेध यज्ञ हुआ। फाइन। भारत आज ट्राइब कहाँ की है, वही उसी टाइम पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे। सो सी यज्ञ की प्रैक्टिस जो आज भी होती है, सी इट हैज द रूट्स ओवर हियर। फाइन। तो यज्ञ होते थे यहाँ पे। हम क्या करते हैं यज्ञ में, हम ऑफरिंग्स करते करते ना, स्वाहा मतलब ऑफरिंग करते हैं, ठीक है, प्रेयर्स करते हैं, चैंट करते हैं मंत्रास को। सो सी ऑल दीज थिंग्स दे आर हैपनिंग टू डीटीज, राइट। अलग अलग आपके यज्ञ देखे होंगे अपने घर में, है ना। आपके नवरात्रों में अलग देवी जी का यज्ञ होता है, गायत्री माँ का यज्ञ होता है, राइट। सो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट यज्ञास हैपनिंग, राइट। अब इन वेदों से ही एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी निकला, एक दूसरी काइंड ऑफ आप देखोगे थिंकिंग निकल के आई, जो कि थी उपनिषद्स। क्या थी? उपनिषद्स। ठीक है, तो वो वेदास से ही अब देखो कि डिराइव हुई है, एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है। ओके एक नई अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ठीक है, अब उपनिषद्स में क्या आया, न्यू आइडियाज जो कि वैदिक टीचिंग पर बेस्ड थी, दैट केम अप। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल सम चैप्टर इज देयर एंड यू गॉट अ नॉलेज ऑफ दैट, योर टीचर टॉट दैट, फाइन, बट एट द एंड ऑफ कोर्स देयर इज योर अंडरस्टैंडिंग हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फाइन, हेयर ऑल्सो वेदास में जो लिखा है, ठीक है, उसको तो हमने फॉलो कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, उसी बेसिस पर न्यू आइडियाज निकल के आए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट उपनिषद्स आर लाइक। ओके, उन्होंने कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए कॉन्सेप्ट? रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन इज देयर। ठीक है, रीबर्थ इज हैपनिंग। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्म मतलब वॉट एवर यू विल सो शैल यू रीप। ठीक है, सिंपल सा हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, इफ यू विल डू रॉन्ग टू समबडी you will be punished accordingly, and if you will do good to somebody you will be rewarded accordingly. Rather, let me tell you, you will be punished many fold times and you will be rewarded many fold times. इसलिए पेरेंट्स हमेशा बोलते होंगे कि हमेशा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, right? We should be kind always, we should have compassion, we should have love to other people, right? So why so? Because see, whatever you are giving to the society or to any other person, that will only return back to you in many fold times. Okay, and this is like this new concept was coming up in Upanishads. Vedas में क्या हो रहा है? There is one God, एक God है, सिंपल, देखो बहुत सिंपल है वेदास में, कुछ रीबर्थ नहीं किया, कर्मास नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज, गॉड इज देयर, पूजा करो, और पूजा से रिलेटेड, वर्शिपिंग से रिलेटेड ऑल द मंत्रास एंड ऑल आर मेंशन्ड इन वेदास, दैट्स इट। गवर्नेंस सिस्टम भी देखो सिंपल सा, राजा है एंड देयर इज सभा एंड समिति, दैट्स इट। उपनिषद जो है उन्होंने अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा नई चीज एलिमेंट लेकर आए, है ना। एलिमेंट क्या था? दैट इज टू से रीबर्थ एंड योर कर्मास, राइट। एक और चीज आई, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। ठीक है, आत्मन मतलब हम जिसे आत्मा बोलते हैं, सेल्फ, हमारी स्पिरिट, हम, राइट। सो दे इवन केम अप विद दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, वी हैव अ स्पिरिट, वी हैव समबडी इनसाइड अस ऑल्सो, हम सेल्फ का सेल्फ विद दैट इज टू से, राइट। Next is what the concept of Brahman. Brahman, it even came into existence. अब ये जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्रह्म इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिखने में ब्राह्मण आएगा, बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट, इट्स लाइक दैट इज टू से ब्रह्म। अब जो ब्रह्म है ये, इट्स नॉट एनी ब्राह्मण वी आर रेफरिंग टू, ठीक है, ब्राह्मण कास्ट हम उनको रेफर नहीं कर रहे। हम जो अजमेर पुष्कर में वी आर हैविंग लॉर्ड ब्रह्मास मंदिर, सो दैट लॉर्ड ब्रह्मा आल्सो वी आर नॉट रेफरिंग टू। ब्रह्म इज यूनिवर्स, ठीक है, वन गॉड, राइट। सो हेयर वी आर रेफरिंग टू दैट यूनिवर्स ओनली, कॉस्मोस, राइट। सो बहुत एक सुप्रीम पावर जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, दैट वन सुप्रीम। सो दैट कॉन्सेप्ट even came this time. it was the thing, और इसके अकॉर्डिंगली भी क्या था, ठीक है, जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट आया वेदांता। ठीक है, अब वेदांता मतलब फिर से एक ग्रुप ऑफ लोग आएंगे। स्कूल ऑफ थॉट का आते ही समझ जाना, ये कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, ये कोई थॉट नहीं, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर हैविंग सम बिलीव्स, सम आइडियाज, सम ओपिनियंस रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू वर्ल्ड एंड द ह्यूमन नेचर। फाइन, सो दिस इज अबाउट दिस। तो यहाँ पे जो एक वेदांता स्कूल ऑफ थॉट है,
यहाँ पे क्या बोला गया, दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस। ठीक है, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ह्यूमन है, नेचर है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, एनीथिंग वॉट एवर इट इज, सब एक है, एवरी वन इज टूगेदर, दैट इज टू से दे आर कनेक्टिंग एवरी लिविंग बींग्स। ठीक है, सबको वो कनेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वेदांता। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, डिराइविंग फ्रॉम दीज वेदास, राइट। इसी के साथ आज से 5000 से 2000 साल पहले तो ये सब हो रहा है, वेदास, उपनिषद्स, they are coming, they are developing, they are evolving, people are reciting them, they are carrying forward from one generation to another for like 100 to 200 generations, fine। इसी के साथ आज से 1000 साल पहले आप देखोगे तो एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया जो आज भी बड़ा फेमस है, दैट्स योर योगा। यस, दैट इज योर योगा, फाइन। अब देखो योगा अगर आपने देखा हो, सो इट इज अबाउट व्हाट, योगा इज ऑल्सो अबाउट योग। योग हिंदी में होता है योग, इंग्लिश में मतलब जुड़ जाना किसी से। ठीक है, किससे जुड़ेंगे हम, इट इज ऑल अबाउट स्पिरिट। स्पिरिट जो हमारी अंदर की जो एक एनर्जी है, स्पिरिट भूत नहीं होता, स्पिरिट पिशाच नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है। ठीक है, आप देखना कभी बहुत डर लग रहा है, एग्जाम होने वाला है ना, एंड यू आर लाइक योर एग्जाम कैंसिल हो जाए, है ना, या कुछ भी हो जाए, समथिंग लाइक बस एग्जाम छुट्टी हो जाए, समथिंग हैपेंस लाइक दैट। अगर आप लिटरली दिल से किसी चीज को चाहोगे ना कि यस ये ऐसा हो जाए और वो सही हो, it should not be like you are thinking some evil thoughts or something, then that's wrong, that won't be manifested for sure। but if you are having some good feelings, some good thing is there in your heart, राइट, एंड यू पैशनेटली वांट दैट कि नहीं यार प्लीज ऐसा हो जाए। समटाइम्स आपने देखा भी होगा, अभी तक हो जाता है। ठीक है, अरे यार मैं तो सोच ही रहा था और हो गया वो चीज, राइट। सो दैट इज द थिंग बेसिकली। तो योग क्या है, एक तरीके से अपनी उस एनर्जी के साथ जुड़ जाना। सो दैट इज टू से सुप्रीम बीइंग के साथ जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ के कहीं ना कहीं आप उस यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, क्योंकि क्या बोलते हैं हमारे अंदर भी वही एनर्जी है जो उस गॉड में है। तो इफ वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद आवरसेल्व्स, सो इन अ वे वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम पावर, इजंट इट। आपका जियो का कनेक्शन है ना। अब जियो का कनेक्शन को डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से मिलता है, आपके नियर बाय टावर से, इजंट इट। बट एक्चुअली में तो यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द मेन जियो ओनली, इजंट इट, क्योंकि वो छोटा कहीं और कनेक्ट होगा टावर, फिर कहीं और कनेक्ट होगा, कहीं और होगा, एंड फाइनली यू आर कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम टावर ऑफ जियो, isn't it? So simply if anybody is going inside, right, and from there he is understanding his inner energy, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम एनर्जी से भी जुड़ जाता है। so that was a kind of yoga। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारे आसन होते हैं, योगा आसन, योर वृक्षासन इज देयर, योर डिफरेंट बाला आसन इज देयर, बहुत सारे आसन हैं। उन आसन को करते करते, मतलब दीज आर द प्रैक्टिसेस कि कैसे जुड़ेंगे। अब कैसे, कोई तार तो है नहीं कि कहीं पे जुड़ाव हो गया, नहीं, कैसे होंगे। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन इज देयर, प्राणायाम इज देयर, ठीक है, सांस को कंट्रोल करो एंड ऑल। सो दिस इज हाउ दिस स्कूल ऑफ थॉट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड ग्रेजुअली क्या देखा कि ये जो सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इन सब ने इन्फ्लुएंस किया हमारा जो हिंदू कल्चर है। ठीक है, जो हमारा इंडियन कल्चरल रूट्स पढ़ रहे हैं ना हम, कि हमारे कल्चर के रूट्स हैं कहाँ भाई। आज जो हम देख रहे हैं, ठीक है, हम सुबह सुबह हमें बोला जाता है कि आप पूजा करो, तुलसी जी पे जल चढ़ाओ, ठीक है, मंडे को शिव जी पे जल चढ़ाओ, ठीक है, ट्यूसडे को आप कहाँ पे जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, बुधवार को गणपति जी के मंदिर जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई कहाँ से, अभी तो नहीं है कि भाई अभी अचानक से कुछ डेवलप हो गया, नहीं। सो सी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। ठीक है, इतनी सारी चीजें तब से लेके चल रही हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। और इन्हीं सारे स्कूल्स ऑफ थॉट ने क्या किया, हमारे हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब बहुत फेमस मंत्रास भी हैं फ्रॉम उपनिषद्स, जैसे अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आया था ना कि सब एक है, लाइक एवरीथिंग इज वन, वी ऑल आर यूनाइटेड। सो सी अहम ब्रह्मस्मि मतलब कहने का मतलब आई एम ब्रह्म। ठीक है, मैं वो ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वही है। जियो का एक छोटा टार हो या वो बड़ा टार हो, बात तो वही है, isn't it, right? So this is like one thing only. So aham brahmasmi,
नेक्स्ट इज वॉर तत्त्वम असि, तत्त्वम असि मतलब यू आर दैट, कहने का मतलब तुम वही हो, यू आर वही, ठीक है, तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, गॉट द पॉइंट। इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे उपनिषद में भी क्या निकल के आया था, दैट इज टू से दैट वी ऑल आर टुगेदर एंड वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो इसीलिए एक और मंत्र है, दैट इज टू से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, मे ऑल बी क्रिएचर्स हैप्पी, राइट, मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, दैट इज टू से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सब खुशी रहे, सबका कल्याण हो, ठीक है, और प्रॉपर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो सबका कल्याण हो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द वेदास, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे बुद्धिस्ट और जैनिज्म की स्टोरी की तरफ। ओके, तो व्हाट आर वेदास, वेदास हैं क्या? सो दीज आर एंशियंट सेक्रेड टेक्स्ट एंड वी आर हैविंग 4 ऑफ देम, ऋग, यजुर, साम एंड अथर्व, ठीक है। और ओरली वो 1 जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर गए, बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक। फिर हमारे पास वैदिक सोसाइटी है। सोसाइटी कैसी थी बेसिकली, तो क्लैंस या जनास में डिवाइडेड थी। ऋग्वेदा में हमने देखा कि 30 क्लैंस वर देयर, राजा होता था और उसके नीचे सभा और समिति होती थी, बहुत सिंपल सा गवर्नेंस सिस्टम। ऑक्यूपेशंस में फार्मर्स, वीवर्स, हीलर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, बहुत सारे लोग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स वर ऑलरेडी देयर, राइट। नेक्स्ट इज वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट आए? सो वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज टू से कर्मा, कर्मा एंड धर्मा इज देयर, राइट। तो हम अपनी ड्यूटी करनी चाहिए हमें, ठीक है, ड्यूटी करनी चाहिए। कर्म जो होते हैं, लाइक दैट इज टू से व्हाट यू विल रीप व्हाट यू विल सो, राइट। सो दैट इज द थिंग। उपनिषद्स ने स्पिरिचुअल नॉलेज को एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर किया। वेदांता ने अपना एक थॉट दिया, दैट इज टू से दैट वी ऑल आर यूनाइटेड, दैट वी ऑल आर वन, राइट। सो दिस इज अबाउट वेदास, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर वेदास। चलो अब इसी के साथ चलते हैं बुद्धिज्म की तरफ। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसे वेदास, उपनिषद, वेदांता एंड डिफरेंट अदर स्कूल्स आल्सो, दे हैड, स्कूल मतलब विद्यालय, हमारा स्कूल नहीं, स्कूल्स ऑफ थॉट, है ना, दे हैड इन्फ्लुएंस्ड इट, राइट। एंड यस, साइमल्टेनियसली इन आवर कंट्री वी सॉ दैट बुद्धिज्म भी एक टाइम की बात, ठीक है, वेदास तो आए, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन विल फॉलो one religion or one this schools of thought only, fine. So now what is happening, gradually we'll see a new religion, it is coming up, ठीक है। अब ये आया कैसे, कहाँ से आया ये बेसिकली, ठीक है। तो ये इनके फाउंडर कौन है, दैट इज योर सिद्धार्थ गौतम, किंग सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अब ये कब बॉर्न हुए थे बेसिकली, एग्जैक्टली तो नहीं पता किसी को कि व्हेन ही वाज बॉर्न एंड ऑल, बट बहुत साल पहले, राइट, हजारों साल पहले, बिफोर कॉमन एरा इवन, सो ही वाज देयर, फाइन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दैट ही वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। एंड ही वाज लाइक फुल ऑफ ऑल लग्जरीज, बहुत सारी लग्जरी थी इनकी लाइफ में, ठीक है। बट व्हेन ही वाज 29 years ऑफ ओल्ड, व्हाट हैपेंड, ही सॉ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इज टू से उनको अचानक से कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिली, ठीक है। कैसे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ही फाउंड दैट there was a person like who was very sick and he was shivering like anything. Next he found that there was a poor person, so at that time he understood that that people, they are poor also, that many people, they are like, no, they are not having any kind of money, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने क्या देखा, मिजरी, सफरिंग, fine. Lastly he even saw death, right, he even saw a dead body going for like for all the rituals and all, fine. When he saw all these things, so he just suddenly what happened, उनका जो पूरा luxurious life था वो एक बार के लिए गायब हो गया, and he understood that life is not what I am looking at my palace, what I am enjoying in my palace, life is more than that, right. And having that understanding, वो निकल गए सच की तलाश में। सच मतलब जिंदगी क्या है, right, उन्हीं questions को ढूंढने के लिए he just left everything, right. So King Siddharth, he left everything and he just went out. कहाँ गए वो basically अब, राइट। सो ही रीच्ड बोध गया, ठीक है, बिहार में है एट प्रेजेंट, वहां पे गए, पीपल ट्री के बीच, पेड़ के नीचे बैठ के, एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग,
मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, दैट इज टू से ही वेंट इनसाइड, है ना, अपनी वो जो एनर्जी है, रियल एनर्जी है, जो स्पिरिट है, उसको उन्होंने जानने की कोशिश की, ठीक है, और वहां से उन्हें समझ में आई कुछ चीजें. सो ही गॉट सम एनलाइटनमेंट, सम अंडरस्टैंडिंग ही गॉट अबाउट लाइफ, राइट. सो ही मेड सम पर्सपेक्टिव देयर, राइट. रियलाइजेशन हुआ उन्हें, ठीक है. क्या रियलाइजेशन हुआ? कि जिंदगी में लाइक जो लोग हैं, द पीपल दे आर सफरिंग, ठीक है, पीपल दे आर सफरिंग एक्चुअली. Suffering means what? Suffering means sadness, right? Suffering means sadness, or maybe any kind of discomfort is there, right? ठीक है. अब ये sadness physical भी हो सकती है, oh किसी ने एकदम से मार दिया, so physically hurt you means you got physically hurt, so you are in pain, you are in suffering, ठीक है. दर्द हो रहा है, अरे डिटोल लगा रहे हैं, अरे बहुत जल रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो सफरिंग इज देयर, ठीक है. डिस्कम्फर्ट, फॉर एग्जाम्पल somebody is just bullying you, he is making fun of you, तो फिजिकली तो कुछ नहीं हो रहा, बट मेंटली वी आर फीलिंग बैड, सो सफरिंग इज देयर, फाइन. और ये सफरिंग होती किस वजह से है? इग्नोरेंस की वजह से, कि जब हमें पता नहीं है, जब हमें एक्चुअल रियलिटी पता नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बुलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. इफ इट हैपेंस दैट समबडी इज बुलिंग यू, ठीक है, तो वो बुली कैसे कर रहा है? या तो वो आपकी बॉडी शेपिंग करेगा, ठीक है, या फिर वो आपको इंसल्ट करेगा इन एनी वे, राइट. और मे बी ही विल पास सम नाडी कमेंट्स और समथिंग लाइक दैट ऑन यू, राइट. You will get affected when you don't know the truth about yourself, when you are ignorant about yourself, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट मे बी यू आर अ लिटिल फैट, आप थोड़ा सा फैट हो, ठीक है. नाउ somebody is like चिढ़ाइंग यू, आपको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, बॉडी शेमिंग एंड ऑल दैट इज हैपनिंग, ठीक है. बट you will feel bad when you do not believe or when you do not love yourself as such, isn't it? आपको बुरा लगेगा, of course लगेगा. somebody is making fun of you, fun of your shape and everything, fine. so but on the contrary, if you have understanding कि अरे ठीक है, ये मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, ठीक है, टेम्पररी है, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी मैं जिम चला जाऊंगा, अभी मैं जिम चली जाऊंगी, पिलाटीज करूंगी, योगा करूंगी, आई विल बी फिट अगेन. इट्स नथिंग, ये पागल है, यही लोग स्टूपिड ही हैं, राइट. व्हेन यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, नाउ टेल मी, विल यू फील बैड? रादर यू विल बी लाफिंग एट देम कि अरे कितने स्टूपिड लोग हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन माय बॉडी शेमिंग पार्ट एंड ऑल, इजंट इट, राइट. क्योंकि देखो, बॉडी आपके अंदर कंट्रोल में होती है, ठीक है, आप उसे जैसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है. इट्स नॉट समथिंग विच, इट इज नॉट सम मिरेकल, और इट इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक नॉट अचीवेबल, ठीक है. इट जस्ट जैसे ही टाइम मिलता है, सब आराम से बहुत जल्दी से रिड्यूस कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो सकता, ठीक है. डायरेक्ट अप्रोच चाहिए ना, एवरीथिंग, फाइन. सो दैट इज द थिंग. सो अभी इग्नोरेंस है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं है एंड ऑल, ऑफ कोर्स यू विल फील बैड, यू विल फील सफरिंग, ठीक है. और जब नॉलेज हो गया, अरे ठीक है, कर लूंगा, करने दो, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट? अटैचमेंट. अटैचमेंट कैसे? आपका पेट है, ठीक है, अब उस पेट को लग गई चोट, टेल मी, बुरा लगेगा, है ना, यू विल फील बैड, यू मे हैव टीयर्स ऑल्सो, इजंट इट. क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है कि इसको लग गई. आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉय है, ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स है, किसी ने चुरा लिया, कोई ले गया, किसी ने तोड़ दिया, you will feel bad. So this is attachment. ये क्या हो गया? अटैचमेंट हो गया, ठीक है. अब सोचो, अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है, अटैचमेंट नहीं होता एज सच, और जो बॉक्स चला गया, कोई नहीं, दूसरा ले लेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जिसको चाहिए था उसको मिल गया, शायद मेरे पास इतना ही टाइम के लिए था, इट्स ओके, लेट इट बी, आई विल हैव समथिंग न्यू, राइट. व्हेन समथिंग इज गॉन, देन somebody gets something new. When you have this understanding, automatically you know that your hand is not empty, you have something else, राइट. सो दिस इज अबाउट दिस. टीचिंग्स में बुद्धा ने क्या बोला? उन्होंने सिखाया अहिंसा, दैट इज टू से नॉन वायलेंस, ठीक है. नॉन वायलेंस मतलब हमें किसी भी तरीके से फिजिकली तो नहीं करना चाहिए फाइट, साथ के साथ वर्बली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, ठीक है. हमें वर्बली भी किसी को अब्यूज नहीं करना है, मेंटली ऑल्सो वी शुड नॉट हैव इल थॉट्स, ठीक है. क्यों? क्योंकि देखो, इल थॉट्स जो है कहाँ है? इन योर माइंड ओनली, आपके ही माइंड में है वो, ठीक है. तो वो किसी और को हार्म नहीं कर रहे, वो जहां है वो उसे ही हार्म कर रहे हैं,
गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं आई एम होल्डिंग अ वेरी हॉट रॉड इन माई हैंड इन प्लेस ऑफ दिस पेन, मैं इसको पकड़ के रखी हूँ, ठीक है, तो ये मुझे ही तो हर्ट करेगा, किसी को थोड़ी ना करेगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई हिज टीचिंग, वन ऑफ द टीचिंग्स इज व्हाट? अहिंसा. नेक्स्ट इज इनर डिसिप्लिन. इनर डिसिप्लिन कैसे होता है? डिफरेंट इसके भी फंडे हैं, जैसे दैट इज टू से ग्रीड नहीं करना है, ठीक है, ग्रीड मतलब लालच नहीं होना चाहिए, झूठ मत बोलो, ठीक है, बी ट्रूथफुल. ट्रूथफुल मतलब आपके माइंड में, आपके हार्ट में और आपके जेस्चर्स में जो भी है वो सब एक होना चाहिए, ऐसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपने मैम ने पूछा होमवर्क कर लिया, आपने किया नहीं है, तो माइंड में क्या है? किया नहीं है, ठीक है, डर लग रहा है, अरे ठीक है, और आपने झूठ बोल दिया, नहीं हाँ कर लिया मैम, कॉपी घर पे है, लेकर नहीं आए, ठीक है. तो नाउ व्हाट हैपेंड? जेस्चर क्या था? झूठ बोलना, ठीक है. दिमाग को पता है, दिल को पता है, हम डरे हुए हैं, हमें पता है कि हमने नहीं किया, बट हमने झूठ बोल दिया. सो दैट शुड नॉट बी डन. तो इनर डिसिप्लिन, अंदर का डिसिप्लिन, जो दिमाग में है वही बाहर है, जो दिल में है वही बाहर है. डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. हिंदी में एक वर्ड होता है अद्वैतता. अद्वैत मतलब दो चीजें, टू फेस नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे से कुछ. सामने से तो अरे वाह बहुत बढ़िया लग रहा है यार, राहुल यू आर लुकिंग सो प्रिटी, वाह वेरी नाइस, है ना, और दूसरी तरफ क्या तो लग रहा है यार, वो देख तो सही हो. गेटिंग? सामने कुछ और है, पीछे हंसी मजाक कुछ और कर रहे हो, ना 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 ना. वन थिंग, जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? कॉन्करिंग वन सेल्फ, है ना, कॉन्करिंग वन सेल्फ, डिजायर्स पे, लालच पे, ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना है, और इतनी मिठाई आ गई सब खा लिए, नहीं, सब लोग हैं, सबको देंगे, सब खाएंगे, ठीक है. सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. तो उन्होंने सफरिंग से रिलेटेड क्या कहा कि सफरिंग कब होती है? व्हेन देयर इज इग्नोरेंस, व्हेन देयर इज अटैचमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट? टीचिंग्स में उन्होंने क्या कहा? अहिंसा. अहिंसा करना है मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए. इनर डिसिप्लिन, अपने आप को अंदर से डिसिप्लिन, दिमाग और दिल एक होना चाहिए, जो हमारा जेस्चर है वो भी एक होना चाहिए. कॉन्करिंग वन सेल्फ, लालच, डिजायर ये नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, सो दीज आर द थिंग्स ऑफ बुद्धा. ओके, इसी के साथ अब उनकी ये जो टीचिंग थी, किन्होंने आगे लेकर गए? तो संघ ने. संघ अगेंस्ट मीन्स व्हाट? ग्रुप, राइट. तो बुद्धिज्म का जो ग्रुप था या उनका जो संघ था, इट यूज टू कंसिस्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है. मॉन्क्स मतलब भिक्षुस और नन्स मतलब भिक्षुनीज, राइट. तो ये लोग जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो सब तरफ स्प्रेड करते थे, ठीक है, लाइक दिस. ओके ओके, और इसी के साथ अब हमारा बुद्धिज्म हुआ ओवर. तो बुद्धिज्म में हमने क्या देखा? किंग सिद्धार्थ की स्टोरी पढ़ी. उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सफरिंग क्या थी कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट देयर इज सफरिंग इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट इज व्हाट? की टीचिंग्स क्या है? अहिंसा, इनर डिसिप्लिन एंड कॉन्करिंग वन सेल्फ. सो सी दीज आर द टीचिंग्स. अब ये बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, भिक्षुस एंड भिक्षुनीज. ओके ओके, सो यस, नाउ लेट्स मूव टू द जैनिज्म. अब देखो, जैन मीन्स व्हाट? जिन बेसिकली, राइट, मतलब कि कॉन्करर, वॉरियर इन अ वे, ठीक है. इसका मेन मीनिंग अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे सो दैट्स लाइक वॉरियर और कॉन्करर. तो किससे? योद्धा की तरह से युद्ध नहीं लड़ना, अपने आप से, अपनी जो एविल्स हैं, अपनी जो बुराइयां हैं उनसे लड़ना है, ठीक है. जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हम किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, नो, वी हैव टू कॉन्कर दीज फीलिंग्स ऑफ आवर्स, वी हैव टू कॉन्कर आवरसेल्व्स. ओके, सो दैट इज अ जैन. आपने देखा भी होगा जैन लोगों में, आपके फ्रेंड्स होंगे, इन देयर हाउसेस दे हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन, isn't it? सनराइज और सनसेट इसी टाइम पर ही खाना है, उसके आगे पीछे नहीं खाना पीना, ठीक है. इसी के साथ ही मॉन्क्स, इनकी जो मॉन्क्स एंड ऑल है, आपने देखा होगा कि दे आर ऑलवेज हैविंग सम पेपर एंड समथिंग इज देयर टू कवर देयर माउथ. व्हाई सो? बिकॉज दे आर फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, कि किसी भी तरीके का नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए, राइट. सो यस, ये जो रिलीजन है हमने क्या देखा, वाइड स्प्रेड कब से हुआ? 6th century BC से, ठीक है. सो यहाँ से इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट
And who was the founder? Basically it's your Prince Vardhaman Mahavir, that is 24 तीर्थंकार. अब जो फर्स्ट तीर्थंकार हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने भी किया, बट वाइड स्प्रेड, जो लार्ज स्केल पे स्प्रेड हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ वर्धमान महावीरा. ठीक है, सो वी विल गो विद दिस ओनली. ठीक है, अब इनकी जैनिज्म और बुद्धिज्म की स्टोरी अब ऑलमोस्ट सिमिलर पाओगे. ठीक है, जैसे उन्होंने किंग सिद्धार्थ ने 29 इयर्स की एज में छोड़ दिया था अपना घर, इन्होंने 30 इयर्स में छोड़ दिया. ठीक है, और स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में चले गए. ठीक है, इनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जैसा कि किंग सिद्धार्थ के साथ हुआ था. ओके, 12 इयर्स तक ही डिड डीप मेडिटेशन, 12 इयर्स तक, एंड फाइनली he understood the reality of life, or we can say the truth of life, right? महावीर बन गए इसके बाद, जो आपके वर्धमान थे. ठीक है, महावीर मतलब ग्रेट, महान मतलब महा, वीर हीरो, तो he became महावीरा आफ्टर दैट. यस, इसी के साथ जैनिज्म की जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है वो क्या क्या है. देखो, इसमें भी नॉन वायलेंस है. नॉन वायलेंस मतलब फिजिकली भी नहीं, इल थॉट्स भी नहीं, अब्यूज भी नहीं करना, वर्बली भी नहीं. अनेकांतवाद, अब इसका क्या मीनिंग हुआ? ठीक है, अब इमेजिन करो आपकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको ना बंद कर दी आंखें. ठीक है, नाउ यू आर आस्क्ड टू कम एंड टच एनीथिंग, एंड लेट मी टेल यू दैट थिंग इज एन एलिफेंट. ओके, अब किसी ने उसका पैर पकड़ लिया. ठीक है, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने ऐसे बॉडी को हाथ लगाया, किसी ने ऐसे कान पे करा. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, एवरीवन विल से देयर ओन इंटरप्रिटेशंस. somebody will say कि ओ अरे ये तो कुछ ना पेड़ के ट्रंक जैसा है. ठीक है, somebody will say कि अरे ये तो कोई रस्सी है, after holding the tail of hathi, at that elephant. So everyone will say their own interpretations. You tell me, are each of them wrong? In a way, are each of them wrong? आंख बंद करके देखें तो नहीं, isn't it? क्योंकि उनको जो समझ में आ रहा है वो वही बोल रहे हैं, and they all are correct in whatever they are saying, isn't it? So अनेकांतवाद means what? कि एक चीज की बहुत सारी रियलिटी हो सकती है, there can be many truths. ठीक है, right? So we should understand that. ठीक है, we should understand that. अपरिग्रह means what? Non possession. एक बहुत प्यारा वर्ड है, that is to say minimalist. इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है जितनी जरूरत हो उतना करना है, बाकी नहीं चाहिए कुछ भी. ठीक है, अपरिग्रह ये योगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अपरिग्रह मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल, आप यू आर हैविंग 50 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, यू टेल मी एक महीने में तो 30 दिन होते हैं, है ना? और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ओकेजन्स आते रहेंगे, isn't it? So finally what could happen कि आपको क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा है, जो नीडेड नहीं है, that should be distributed to others, that should be given to those who are in need of that, right? So this is about अपरिग्रह, है ना? कुछ इकट्ठा नहीं करना है हमें, कुछ होर्ड करके नहीं रखना है. ठीक है, लालच नहीं होना चाहिए कि अरे ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, सब रखूंगा मैं. No, it should not be like that. Whatever is needed, how much it is needed, just make use of that, just keep it that much, that's it, and बाकी सब दे दो, right? तो hoarding नहीं करनी है basically, right? Simultaneously they even said, repeated the same thing, that is to say interconnectedness of life. हर कोई क्या है? connected है, human beings, nature, animal, we all are connected, right? और कहाँ से? ठीक है, एक चेन तो बनी हुई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, isn't it? कुछ टाइम बाद एनिमल हमें खा जाता है. ठीक है, फिर वही जो एनिमल है, when he will get die, तो he will get basically mix हो जाएगा किसमें? सॉइल में ही जा करके. So we all are connected in that way, and also with that supreme energy जो हम सब के अंदर है. फाइन, सो दिस इज अबाउट दिस. इसी के साथ ही हमने यहाँ से क्या सीखा, जो ये जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, they are of course giving us different things like chants, mantras, different things, but simultaneously they are making us understand a very important part, that is to say ways of life, कि हमें लाइफ जीनी कैसे चाहिए, राइट? तो ये जो रिलीजन है, राइट, ये रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए. फाइन, हमारा जो इंडियन कल्चरल रूट्स हैं, इट इज बेस्ड ऑन दीज इंपॉर्टेंट रिलीजन्स.
फाइन. सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट. ओके, इसी के साथ हमारे पास एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको बोलते हैं चरवाका. ठीक है, इसने क्या बोला, अब इन्होंने बहुत अनयूजुअल चीज बोली. इन्होंने बोला कि जो दुनिया है ना, देर इज नो स्पिरिट, देर इज नो आत्मन, देर इज नो ब्रह्म, देर इज नथिंग लाइक दैट, ओनली मटीरियल थिंग्स आर देयर. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज नॉट सो पॉपुलर. देखो आज भी हम लोग क्या बिलीव करते हैं, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन आवर स्पिरिट, वी बिलीव इन दैट सुप्रीम पावर, राइट. सो दिस वॉज नॉट सो पॉपुलर एज सच, चरवाका. ठीक है, इसी के साथ व्हाट वी फाउंड टिल येट की जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, एवरीवन दे हैव कॉमन थिंग्स लाइक धर्म को फॉलो करो. धर्म मीन्स ड्यूटीज. आपको पढ़ने का काम है तो आप पढ़ो, मुझे पढ़ाने का काम है तो आई विल बी टीचिंग, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, राइट. साइमल्टेनियसली यू शुड ऑल्सो स्टडी योर बेस्ट. कर्म, ठीक है, कर्म मीन्स व्हाट, ऑफ कोर्स अपनी, धर्मा मीन्स राइटियस ड्यूटीज, राइट. दैट इज टू से जो आपका है आपको उसको करना है. कर्म, अच्छे कर्म करो. ठीक है, अच्छे कर्म करो. रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी सब में है. ठीक है, देयर इज री इनकारनेशन हैपनिंग. परस्यूट ऑफ एंडिंग सफरिंग, एवरीवन इज थिंकिंग व्हाट, अरे मेरा ये सिलेक्शन हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा. ठीक है, मेरे को पैसे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, राइट. या मेरा दोस्त घर आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा, राइट. सो एवरीवन इज ट्राइंग टू गो फॉर दैट पार्ट ऑफ लाइफ वेयर वी ऑल आर हैप्पी, जहाँ पे हम सब खुश रह सके, isn't it? तो ये सारे जो थॉट्स हैं, schools of thought, and they have these things in common amongst them, right? So yes, इसी के साथ ही let me tell you that it's not about religion only that has influenced the Indian culture, but also it is the tribes also. Yes, हमारी कंट्री में आप देखोगे 705 tribes and which are having 104 million people as per 2011 census. ट्राइब होता क्या है, इट्स लाइक अ कम्युनिटी है, बट बहुत क्लोज निट है, मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. ठीक है, क्लोज निट है, आपस में दे शेयर द ट्रेडिशंस, कल्चर एंड लैंग्वेज. ठीक है, इसी के साथ दे हैव वन लीडर. इनका क्या होता है, एक लीडर होता है, राइट. एंड देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो है पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है दैट डिफरेंट पीपल or different families they will be having their own properties. No, they all belong together, right. Different families are there and they are together and they are close knit community. ठीक है, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लैंग्वेज ये सब उसको शेयर करते हैं. एक लीडर है और देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, अब ये जो ट्राइब्स थी, इन्होंने जो ट्राइब्स थी हमारी कंट्री में, दे आर अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया, वो हर तरफ अवेलेबल है, राइट. और हमारे जो ये रिलीजन थे, इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया ट्राइब्स को, और ट्राइब्स भी इन्फ्लुएंस हुए इन रिलीजन से. ओके, कैसे, जैसे फर्स्ट इज वर्ड, जैसे हमारे पास जो जगन्नाथ ऑफ पुरी है वो बेसिकली ट्राइबल डीटी थे. और देखो वी लाइक हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन में इनको कितना मान्यता है, राइट. पीपल वर्शिप देम, फाइन. इसी के साथ ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी हिंदू गॉड्स को एक्सेप्ट किया, फाइन. सो दे बोथ हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर, राइट. इसी के साथ ही जो ट्राइब्स हैं, हम क्या देखते हैं, दैट दे आर वेरी मच अटैच्ड टू दी नेचर, माउंटेन्स, आप देखोगे ट्रीज, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. हमारे कल्चर में भी है, हम गाय माता को पूछते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, राइट. सो वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ नेचर. जैसे हम यहाँ देखें तमिलनाडु में जो आपका माउंटेन पीक्स है नीलगिरीज के, वहां पर इसको माना जाता है कि वहां पे भगवान रहते हैं, तो उनकी बहुत मान्यता है. ठीक है, टोडा ट्राइबल्स जो हैं दे यूज टू फॉलो दैट एंड वी इवन ऑल्सो फॉलो दैट, राइट. सो दिस इज हाउ वी नो दैट ट्राइब्स दे इम्पैक्टेड अदर रिलीजन्स एंड रिलीजन्स ऑल्सो इम्पैक्टेड देम. सो देर इज अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली, देर इज अ काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, राइट. सो यस, ये सारी चीजें पढ़ी हमने वैदिक सोसाइटी एंड इसी के साथ डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में. बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड किया था. इन्होंने डिफरेंट ट्रूथ्स हमें बताए, ठीक है, एम्फेसाइज किया अहिंसा और मेडिटेशन के ऊपर. जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीरा, जो कि 24 तीर्थंकर थे. इन्होंने अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, इसको बहुत अच्छे से कर लेना फॉर एग्जाम पर्पस. ओके, इन्होंने सिंप्लिसिटी और सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट किया.
ट्राइब्स भी सी कि इनकी जो बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, दे हैड इन्फ्लुएंस द कल्चर, राइट, एंड इवन रिलीजन्स इन्फ्लुएंस देम. Fine. Worship of nature, spirits, and ancestors, that is a part of various tribal communities. Unique festivals, rituals, and oral traditions, they are also the part of tribal communities. Right? So, yes, इसी के साथ let me tell you, जैसे अरुणाचल प्रदेश में we are having Donio Polo. So that is a concept over there, right? So that is there. और वो क्या मानते हैं? Of course that there is supremacy of God. Fine. So दिस इज द थिंग. इसी के साथ ही वी आर हैविंग सोशलिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट है दैट इज ऑनड्रे, राइट, और उन्होंने भी अपनी बुक्स में, अपनी रिसर्च में क्या बोला कि जो इंडियन कल्चर है इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय होम, द रीस ट्राइब कम्युनिटीज. ओके, सो दिस इज अबाउट योर इंडियन कल्चरल रूट्स, जिसमें वेदास हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, एंड वी आर हैविंग ट्राइबल रूट्स ऑल्सो. ओके, सो यस, चलो क्विकली वाला एक छोटा सा क्विज करते हैं. ओके, सो यस, ओके, टेल मी अबाउट दिस. व्हाट एलिमेंट्स डू ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफन वर्शिप? तो किसको वर्शिप करते हैं वो? सिटीज एंड बिल्डिंग्स, वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, और रिटन टेक्स्ट. Okay, so yes, they used to worship mountains, rivers, animals, and trees, right? Okay, now one question is for your homework, right? One question is for your homework, and that I'll give you. Okay, let's do this one. Which of the following assemblies existed in the Vedic society? Sabha and Samiti, Parliament and Senate, Rajya Sabha and Lok Sabha, Assembly and Court. So yes. Okay, very good. That is to say your Sabha and Samiti. Okay, very good. Okay, so yes, now tell me the answer of this in the comment section. What is an important feature of folk and tribal traditions? Following a single religious text, reading the Vedas daily, having no rituals or beliefs, worship of nature and ancestors. So you will be answering them. You will be answering it in the comment section. Okay, so this is all about this. Thank you so much, students. I hope the chapter is very much clear to you. Yes, all the best, all the best for your exams. Prepare well. Yes.